ولادت کا وقت ہوا اور لوگ نماز تہجد کے لیے اٹھ رہے تھے، جیسے ایک آدمی اٹھا، ایک شخص نیند سے بیدار ہوا، پتہ یہ چلا کہ ابھی تو روشن ہے، صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے، آج ہماری نماز تہجد قضا ہو گئی ہے، آج ہماری نماز تہجد بیکار چلی گئی ہے، کیونکہ یہ سورج روشن ہونے لگا ہے۔ یعنی کہ وہ دن جو صبح صادق کا جو روشن ہوا کرتا ہے، وہ روشن ہمارے پاس آ چکا ہے، وہ روشنائی پھیل چکی ہے۔ اسی طریقے سے لوگ اٹھتے گئے، لوگ بیدار ہوتے گئے، آپس میں گفتگو کرتے چلے گئے اور کہتے گئے، بھائیو آج تو ہماری نماز تہجد قضا ہو گئی ہے، آج ہمیں بہت دیر اٹھے ہیں۔ لوگ آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے، یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آگے جا کر جب محلے کے گلیوں میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آگے آپ کے والد محترم حضرت غیاث الدین رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے اور عرض کرتے ہیں کہ بھائیو بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ سبھی لوگ ایک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے غیاث الدین یہ بتاؤ کہ آج ہم لوگوں کی نماز تہجد قضا ہو گئی ہے، آج ہم لوگ بیدار نہیں ہو سکے، نیند سے ہماری آنکھیں نہیں کھلی ہے۔ حضرت غیاث الدین رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، اے میرے بھائیو ابھی صبح نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی نمودار نہیں ہوا ہے، ابھی صبح صادق کا وقت نہیں ہوا ہے، بلکہ ابھی بھی تم اپنی نمازوں کو پڑھ سکتے ہو، بلکہ ابھی بھی تم اپنی نماز تہجد کو ادا کر سکتے ہو۔ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائیو یہ جو آج آپ اپنے محلے میں، آج جو اپنے علاقے میں یہ روشن دیکھ رہے ہو، بلکہ یہ روشن ہمارے گھر میں موجود ہے۔ آج میرا گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میرا لاڈلا پیدا ہوا ہے، اس لیے یہ روشن ہے، اس لیے یہ چمک ہے، اس لیے یہ دمک ہے۔ اے میرے بھائیو آپ لوگ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، باحفاظت آپ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے تو آپ کی ماں ماہ نور، آپ کا نام اصل میں ہے ام الورا، لیکن آپ ماہ نور کے نام سے فیمس ہے، آپ کو ماہ نور سے پہچانا جا رہا ہے۔ جب آپ 15 سال کی عمر تک پہنچے تو آپ کے والد محترم کا آپ کے سر سے ان کا سایہ چلا گیا۔ جب آپ اپنے والد محترم سے جو آپ کو وراثت ملی تو وہ آپ کے پاس صرف اور صرف ایک انگور کا باغیچہ اور ایک بند چکی ملا، جس میں آپ اسی کا آپ ہمیشہ دیکھ بھال کر رہے تھے، آپ انہی کی دیکھ بھالی میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے پائیدان کے بزرگ ہیں، یہ محظوظ شخص ہے، انہوں نے یہ آپ کے چہرے پر سفید داڑھی، سفید لباس اور حضور خواجہ غریب نواز اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں، آپ اپنے باغ کے میں پانی دے رہے ہیں۔ اسی وقت وہ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ پہنچتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص جن کے چہرے پر نورانی ہے، سفید داڑھی ہے، چمکتا ہوا چہرہ ہے اور بھوک سے آثار نظر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو ادب کے ساتھ آپ نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کے دست بوسی کی، یعنی کہ آپ نے ان کے ہاتھ کو چوما۔ تو اسی وقت آپ نے پھر اپنے انگور کے باغیچے سے ایک خوشہ توڑا اور توڑنے کے بعد آپ نے اس بوڑھے شخص کو حضرت ابراہیم کو آپ نے پکڑا دیا اور وہ کھا لیے، اور وہ تناول فرمانے کے بعد انہوں نے اپنی جھولی سے وہ اپنے کچھ چیزوں
को निकालते हैं और आपके हाथ में थमा देते हैं। थमाने के बाद आपको कहते हैं कि मेरे बेटे इसको खा लो। फिर आप इसको अदब के साथ लेने के बाद आप फिर अपने मुंह में रख लेते हैं। अपने मुंह में रख लेने के बाद उनको आप तनावुल फरमा लेते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद, लेकिन देखिए समझने वाली बात ये है, देते भी है तो अदब से, लेते भी है तो अदब से, लेकिन कहते हैं ना कि बाअदब बानसीब हुआ करता है, बेअदब बदनसीब हुआ करता है। हजरत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अदब के साथ लिया तो बानसीब हुआ, बानसीब पाया। उन्होंने उसी दिन से उस बाग को उसको छोड़ दिया, उस टुकड़े को खाना था। आपके दिल की दुनिया बदल गई। आपने रब की बारगाह में आप सिर्फ और सिर्फ लगे रहे। फिर कुछ अरसे के बाद, लेकिन जब आप 54 साल की उम्र में पहुंचे और फिर आपको हुक्म हुआ कि चले जाइए आप हिंदुस्तान की धरती पर। और जब आप हिंदुस्तान की धरती पर आते हैं, संजर इलाके से आप आते हैं, आते रहे हैं, ना पाँव में चप्पल है, ना पाँव में कोई जूते हैं। आज हम कहीं सफर पर चलते हैं तो हमारे पास हजारों लिबास हुआ करते हैं, लेकिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज चल देते हैं, खाली हाथ आते हैं अपने 40 मुरीदों के साथ अपने पास में। 54 साल की उम्र में हिंदुस्तान की धरती पर जब आप कदम रखते हैं, जिस इलाके से आप आते रहे हैं, आपके आने से लोगों में खुशी मचलती है। चरिंदे परिंदे आपके आने से खुशी मना रहे हैं। हिंदुस्तान की वो मिट्टी, वो खुशी से वो महक उठती है। लेकिन जब आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाते हैं, लेकिन आपको वहां ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। आप एक अना सागर के पास में एक पेड़ हुआ करता था, आप उस पेड़ के पास में बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ नादान लोग आपको वहां से उठा देते हैं। उठा लेने के बाद फिर भी आप वहां पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठने के बाद आप उठ जाते हैं, फिर अना सागर के करीब आ जाते हैं। लोग आते जाते हैं, लोग देखते रहते हैं आपने क्या क्या कर रहे हैं। लोग आपसे ये देख रहे हैं कि ये फकीर है, ये दरवेश है, ये क्या है, ये क्या है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की ये पुरानी रिवायात है कि जब हमारे हिंदुस्तान में कोई मुसलमान आता तो उनको बहुत ही निगाहबान से देखता, बहुत ही बदतर निगाह से देखा जाता। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा था कि अगर किसी की बहू, अगर किसी के शौहर इंतकाल कर जाए तो वो उनको उनके साथ में उनको जला दिया जाता। हमारे हिंदुस्तान की इतनी बदतर कल्चर वो मौजूद थी कि माँ बहन बेटियों के साथ बदसलूकियाँ की जा रही थी। उस वक्त जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज आए और दीन के मामले में उन्होंने दीन की मदद की, इसलिए आपका नाम मुइनुद्दीन रखा गया। क्योंकि मुइनुद्दीन का मतलब यह होता है दीन का मददगार, और एक है मुहियुद्दीन, दीन को जिंदा रहने वाला। यानी कि हुजूर ख्वाजा पाक का एक नाम है मुहियुद्दीन, जो दीन को जिलाता है, जो दीन को चलाता है। और एक है दीन के मददगार, और वो मुइनुद्दीन, वो दीन की मददगार करता चला गया। और एक साथ में 90 लाख लोगों को जो मुनकर इस्लाम थे, उनको मुनकर इस्लाम से इस्लाम में दाखिल कर दिया। बैक वक्त सभी के सभी 90 लाख लोग एक ही जबान में कह उठे, पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब एक वक्त एक ही जबान में 90 लाख लोगों ने मुसलमान हुआ, मुनकर इस्लाम जो इस्लाम से इनकार कर रहे थे, उन लोगों ने उस वक्त वो कलमा पढ़ा। फिर इसी तरीके से आप दीन के मददगार बनते गए, आगे चलते गए। लोग हम पर जो ही हम कलमा पढ़ लिए, हम पर मुसलमान का, इस्लाम का सारा अरकान हम पर फर्ज हो जाता है। लेकिन आज हमारा माहौल ये है, कलमा पढ़ लेने के बाद आज हम सूदखोरी करते हैं, कलमा पढ़ लेने के बाद आज हम ज़िनाखोरी सबसे ज़्यादा करते हैं, आज हम कलमा पढ़ लेने के बाद हरामखोरियाँ सबसे ज़्यादा करते हैं, कलमा पढ़ लेने के बाद झूठ दगा चुगलखोरियाँ सबसे ज़्यादा हमारे अंदर पाई जाती
जाती है। कलमा पढ़ लेने के बाद वो मुकद्दस किताब हमारे घरों में पड़ी रहती है जिनके ऊपर धूल जमी हुई है, लेकिन हम कलमा पढ़ लेने के बाद आज तक हम अपनी उन मुकद्दस किताब को आज तक हम अपने खोल कर नहीं देखते हैं। कलमा पढ़ लेने के बाद उस मुकद्दस किताब को हम और उनके और आगों को उलट पलट कर नहीं देखते हैं। कलमा पढ़ लेने के बाद आज हमारे अंदर सबसे ज्यादा बदसलूकियां मौजूद है। कलमा पढ़ लेने के बाद आज हमारे अंदर सबसे ज्यादा बेअदबियां मौजूद है। कलमा पढ़ लेने के बाद फिर भी हमारे अंदर सबसे मुकद्दस किताब हमारे ताकों में यूं ही पड़ी रहती है, लेकिन कलमा पढ़ लेने के बाद रब फरमाता है कि ऐ मोमिनो, ऐ लोगो, ऐ सुनो सुनो, तुमने जो ही कलमा पढ़ लिया अब अंदर आ गए, इस्लाम के अंदर आ गए, अब ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर हराम है। जो तुम पहले ज़िना खोरिया करते थे अब वो तुम निकाह के बगैर ज़िना को आम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे ऊपर हराम है। तुम चुगलखोरियां नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर हराम है। तुम सूदखोरी नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर हराम है। तुम बेईमान झूठ दगा नहीं कर सकते, ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर मुलव्विस कर दिया जाता है, यानी कि खत्म कर दिया जाता है। नाच गाने या हराम कामों को, सारी चीजों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज हम कलमा पढ़ लेने के बाद सबसे ज्यादा शराब नोशी में है। शराब सबसे ज्यादा हमारे मुसलमान के बच्चे पीते हैं। मुसलमान कलमा पढ़ लेने के बाद अगर हमारे मुकद्दस किताब अगर बंद है तो वो हमारे घरों पर बंद है। आज तक हमने अपने पुराने मुकद्दस को कभी खोलकर और आंखों को पलट कर नहीं देखा। अगर हमें पढ़ना नहीं आता, कम से कम हमारे दिलो दिमाग में इतनी बात तो आ जाती, अगर हम इस किताब के जो धूल जमी हुई है उसको साफ कर दिया जाए। बल्कि अलबत्ता अब आलम ऐसा हो चुका है कि अपने घरों की कुरान मजीद को, उस रब्बे करीम की मुकद्दस किताब को अपने घरों के बजाय अब मस्जिदों में लाकर रख दिया जाता है। क्यों? वजह यह है कि आज उस किताब को पढ़ने वाला कोई नहीं है, उसके और आंखों को पलट पलट कर देखने वाला कोई नहीं है। आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां हमसे बदसलूकियां क्यों करते हैं? कलमा पढ़ लेने के बाद क्योंकि हमने उस पर हम पर जो मुलव्विस कर दिया गया, हम उस पर पाबंदी नहीं रहे, इसलिए आज हम बेअदब हो गए, इसलिए हमारे साथ बेअदबियां की जा रही है। आज मुसलमान दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, कटोरियां लेकर लोगों के दरवाजे पर जा जाकर वो भीख मांगने लग रहे हैं। क्यों? वजह यह है, अलबत्ता वजह तो यह है कि हमने कलमा तो पढ़ा लेकिन कलमा के अरकान को नहीं समझा, कलमा के मतलब को नहीं समझा। हमने तो कलमा ईमान को तो रख लिया, अपने सीने में तो महफूज कर लिया, लेकिन पुख्ता ईमान मुकम्मल नहीं किया। लेकिन उसी को देखिए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को जब 15 साल की उम्र में जब एक बुजुर्ग शख्स वो एक नवाला देता है, वो खा लेता है, अदब से लेता है, अदब से देता है, अदब से लेना होता है, अदब से लेना होता है, अदब से देना होता है, फिर अदब वाली चीजें चलती है। जब वो ख्वाजा मोइनुद्दीन जब हिंदुस्तान की धरती पर आ जाते हैं तो वो अदब से आते हैं, फिर लोगों को अदब से देते हैं। निहत्था आते हैं, लेकिन निहत्ताओं को वो तलवारों के साथ वो आपस में भिड़ा देते हैं। जबान, बल्कि वो हकीकतन तलवार नहीं बल्कि जबान की तलवार होती है, उंगली की तलवार होती है। हजारों लोगों को, वो लाखों लोगों को कलमा पढ़ाता गया। बाअदब था, बानसीब हुआ, बाअदब था, बानसीब हुआ। जो बेअदब है वो बदनसीब होता गया। लेकिन उस वक्त जो लोग बाअदब थे बानसीब होते गए, और जो बेअदब थे आज की उसकी नस्लें बेअदब होती ही जा रही है, वो बदनसीब होता ही जा रहा है। आज हमारे घरों में ना पुराने
مجید کی کسی ایک سپارے نہیں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی نسلوں میں موجود ہیں. کیونکہ وہ بے ادب تھے، ہمارے نسلوں میں وہ بے ادب تھے، اس لیے ہم بے نصیب ہوتے گئے. آج ہم سے وہ کلمہ جو حضور خواجہ غریب نواز نے ہمیں پڑھا کر گیا، ہمیں وہ دے کر گیا، اس وقت حضور خواجہ غریب نواز کے آنے سے قبل، اس وقت جب وہ ہندوستان پر نہیں آئے تھے، اس وقت بھی تھے، لیکن ایمان والے تھے، چھپ چھپ کر رہتے تھے، لیکن وہ با ادب تھے، با نصیب ہوتے گئے. ان کے خاندانوں کے ہزاروں لوگ ہندوستان پر موجود ہیں. آج لوگ ہم کلمہ پڑھ لیے لیکن قرآن کو بند کر دیے. دنیا میں وہ اس وجہ سے مار کھاتا رہا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن وہ قبر میں اس لیے مار کھائے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے.